Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Idris and I am Assistant Professor of Mathematics, University of Education, Township, Lahore. So our course is Introduction to Probability and Statistics. It's BS semester 4 course and its code is Math 2111. We start with lecture. First of all, we define the word statistics. So statistics is a branch of mathematics dealing with data collection, organization, analysis, interpretation, and presentation. Word statistics meaning of statistics also refers to the numbers that are used to describe data or relationships. There is another definition: the science which enables us to draw conclusions about various phenomena on the basis of real data collected from a sample. There is another definition: the science of collecting and analyzing numerical data in large quantities, especially for purpose of inferring proportions in a, in a whole in a whole from those in a representative sample. So this statistics is related to data collection. Mainly it is related to data collection and then analyzing and then इंटरप्रेटिंग टेबल फॉर्म में उसको हम लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो corresponding numerical values हम निकालते हैं. So functions or uses of statistics, where it is used. Statistics helps in providing a better understanding and exact description of a phenomena of nature. Because it is deals with numerical quantities, so we can find the exact values where it can be applicable. Statistics helps in the proper and efficient planning of a statistical inquiry in any field of study. And also the statistic helps in collecting appropriate quantitative data. Physicians also use statistics to examine the effectiveness of the treatments. There is a word quantitative data. We will define it later. Come to the next. Why we use statistics? Why statistics are important in our life? Statistics are the set of mathematical equations that we use to analyze the things. It keeps us informed about what is happening in the world around us. Statistics are important because today we live in the information world and much of these informations are determined mathematically by statistics. It means to be informed correct data and statistics. यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपने प्लानिंग करनी है तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा, ठीक है? कोई सर्वे है तो वहाँ पे डाटा कलेक्शन यूज़ होगा, तो वहाँ पे स्टैट के रूल्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वी कम टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. So mainly there are two types of statistics, two branches of statistics. First is descriptive statistics and the second is inferential statistics. Descriptive statistics में हम tools वगैरह सीखते हैं जो इसमें डिफरेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हम कैसे इसकी कैलकुलेट करते हैं, किस क्या इसमें जैसे कि मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और सम टाइप ऑफ फिनोमिना जो कि एक तरह के इवेंट्स होंगे, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं. और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में फिर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को ही यूज़ करते हैं, ठीक है. इसी के जो टूल्स हमने पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक्स में क्या-क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे और उसको यूज़ करेंगे फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में. इसकी डेफिनेशन आप देखें, बोथ ऑफ दीज आर एम्प्लॉयड in scientific analysis of data and both are equally important for the students of statistics. So descriptive statistics, come to the definition of descriptive statistics. Descriptive statistics are used for collecting, summarizing and analyzing numerical data in large quantities to data from a sample, exercising the mean or standard deviation.
डाटा इसमें कलेक्शन होगा, समराइज होगा, टेबल्स वगैरह इसमें बनाएंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें आ जाएगी और डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एवरेज आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, वेरिएंस क्या है, डाटा में वेरिएंस कितनी हो रही है, यानी लोअर और अपर वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ये हम इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। And inferential statistics are used when data is viewed as a subclass of a specific population. पॉपुलेशन जो वर्ड है इसको भी हम आगे डिफाइन करेंगे कि पॉपुलेशन असल में होल जो ग्रुप है, होल ग्रुप ऑफ डाटा, ये होल पॉपुलेशन है, किसी कंट्री की होल पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन है, ठीक है। और उसका अगर एक छोटा सा पार्ट अगर आप ले लेंगे, जैसे कि यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हम अगर एक क्लास की बात करेंगे तो वो एक सैंपल को शो करेगा, ठीक है। इसको आगे हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, descriptive statistics are more examples of descriptive statistics. Descriptive statistics gives information that describes the data in some manner. For example, suppose the pet shop sells cats, dogs, birds and fish. पेट शॉप में ये हमारे इतने कैट सेल होते हैं और डॉग्स हैं, बर्ड्स और फिश हैं। If 100 pets are sold, 100 पेट्स जो ना वो एक दिन में सॉल्व होते हैं, एंड 40 आउट ऑफ 100 आर डॉग्स, और ज़्यादातर जो है ना उसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो डॉग्स सेल हो रहे हैं और 40 हैं, अगर 40 सेल हो रहे हैं तो इसकी जो परसेंटेज निकलेगी वो क्या निकलेगी, 40%। 100 में से 40 सेल हो रहे हैं तो परसेंटेज जो है ये भी एक डिस्क्रिप्टिव मेजर है, ठीक है। सेकेंड इसी में देखें, दिस सेम पेट शॉप मे कंडक्ट a study on the number of fish sold each day for each month and determined that an average of 10 fish were sold each day. अब इसमें उसने कहा कि जितने भी एक वीक में या एक मंथ में हमने देखा कि फिशेस कितनी सोल्ड होती हैं, कितनी सेल हो रही है फिशेस की। फॉर एग्जांपल किसी दिन 7 जो है ना सोल्ड आउट हो रही हैं, किसी दिन जो है ना उसकी सेल 11 हो जाती है, किसी दिन 12 हो जाती है, तो बाद में उनकी जब एवरेज निकालते हैं तो वो 10 आती है, ठीक है। तो एवरेज इज अ मेजर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी एक डिस्क्रिप्टिव मेजर है। The average is an example of descriptive statistics. Other descriptions of data are mode, median, standard deviation, variance, moment. बात ये सारे जो ना ये जो डिफरेंट ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो है वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मोमेंट और भी हैं जो इसमें बाद में हम इसको आगे फिर। नेक्स्ट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पीछे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल देखी, ठीक है, क्या क्या उसमें हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसको समझाने के लिए ये एग्जांपल है, सपोज यू नीड टू कलेक्ट डाटा on a very large population. For example, suppose you want to know the average height of all the men in a city with a population of so many millions residents. यानी एक रेजिडेंस है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और उसके आप क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एवरेज हाइट ऑफ ऑल द मैन। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनकी एवरेज हाइट जो है ना वो क्या है ऑल द जितने भी इसमें मैन हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़ाहिर है होल जो ग्रुप के पास तो नहीं, हर बंदे से पूछने तो नहीं जाएंगे ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ पर्सन का सैंपल ले लेंगे, कुछ डिफरेंट प्लेसेस में से जो भी एरिया है उसमें डिफरेंट जगहों पे हम कुछ लोगों से पूछ के हम जो है ना ये आगे फिर हम रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। यानी एक सैंपल हम ले लेंगे। सैंपल के कलेक्ट करने के कई मेथड्स हैं जो कि बाद में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। So this is where inferential statistics comes into play.
Inferential statistics makes inferences about population using data drawn from the population. अब हमने क्या करना है कि हमने एवरेज निकालना है, ठीक है। हमने क्या निकालना है, हमने एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम एक सैंपल हमने ले लिया, जितने भी एरिया उस एरिया के रेजिडेंट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन जो है ना वो 1 लाख है, तो हो सकता है हम सैंपल जो है वो 1000 पीपल का सैंपल ले लें, ठीक है। तो उन 1000 पीपल की जो भी हाइट्स हैं उनका हम मीन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मीन वैल्यू या अरिथमेटिक मीन भी इसको कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। एवरेज इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उस सैंपल की जो फिर आप एवरेज जो है ना वो कोई नंबर हमारे पास आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो रेजिडेंट है उनका जो एवरेज है, पूरे जो रेजिडेंस है, पूरा एरिया जो है, जो जितने भी मैन इसमें रह रहे हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो ये है, ठीक है। इस तरह से यहाँ जो जो हम एवरेज टेम्परेचर आपको बता रहे होते हैं टीवी पे या मौसम की सूरत में जो बता रहे होते हैं, ठीक है, उसमें जो एवरेज बता रहे हैं वो भी जो टेम्परेचर बता रहे हैं वो भी एवरेज ही होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट प्लेसेस, अगर लाहौर का टेम्परेचर है तो लाहौर के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे ये टेम्परेचर मेजर होता है और उन सब का एवरेज टेम्परेचर बता दीजिए लाहौर का टेम्परेचर है, ठीक है। यानी हर एरिया में नहीं जा सकता, उनमें उन्होंने भी कुछ एरियाज लेके जहाँ पे उनको पता होता है कि ये एरिया यहाँ पे टेम्परेचर लोएस्ट हो सकता है और ये एरिया है यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। उनको लाजमी कंसिडर करते हैं और फिर बाकी जगहों पे जो टेम्परेचर थोड़े थोड़े जगहों पे और लेके तो उनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर है वो लाहौर टेम्परेचर को शो करता है, एवरेज टेम्परेचर, वो भी एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है। Instead of using entire population to gather data, the statistician will collect a sample or sampleware from the millions of residents and make inferences about the entire population using the sample. The sample is a set of data. Sample को आगे भी डिफाइन हम करेंगे. Sample is a set of data drawn from the population to present the population. यानी कि जो पॉपुलेशन का मतलब ये है यहाँ पे कि जो होल सेट ऑफ डाटा, यानी कि एक लाहौर की जैसे पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आप ले लेते हैं वो सैंपल होगा, और जो लाहौर की जो पूरे जो पर्सनस हैं, ठीक है, जो आबादी है वो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। इन पॉपुलेशन जो है ओरिजिनल डाटा को शो करता है, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे। द प्रोबेबिलिटी distribution, hypothesis testing, correlation testing, regression analysis all fall under the category of inferential statistics. These methods allow you to make predictions about unknown values on the basis of small set of sample value. यानी inferential statistics का फ़ायदा ये है कि आपको हर पॉपुलेशन जो है, जो ओरिजिनल डाटा है, उसके हर बंदे के पास नहीं जाना पड़ता, हर वैल्यू को नहीं कंसिडर करते। हम सिर्फ सैंपल को देख के हम कह देते हैं कि इस पॉपुलेशन की ये एवरेज है या इस पॉपुलेशन का ये मॉड है, इस पॉपुलेशन का ये मीडियन निकला है, इसकी ये स्टैंडर्ड एविएशन निकल आई है, ठीक है। तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। इसमें हम आप देखें टूल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, जो कि पिछले टूल्स ही हम यूज़ करें, डिस्क्रिप्टिव को ही हम यूज़ कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम पढ़ते हैं मॉड, मीन, मीडियन कैसे निकालेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा उससे पहले आता है, ठीक है, और उसी को फिर आगे अप्लाई आप कर रहे हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही हम इसमें पढ़ेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो आपका अगला कोर्स है, अगले मेरे ख्याल सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही है, जो कि आगे जो है हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो आगे एग्जांपल्स करते हैं। एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ अ रिपोर्ट ऑफ हाउ मैनी फॉलोअर्स ऑफ ईच रीजन देयर आर इन अ पर्टिकुलर कंट्री। कितने फॉलोअर्स हैं एक रीजन, तो ये भी आप काउंट करेंगे कि कितने हैं, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ स्टडीज हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन मैथमेटिक्स क्लास ऑफर्ड इन हाई स्कूल एंड कॉलेजेस। कितने जो ना वो स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हाई स्कूल में या कॉलेजेस में, ठीक है। या कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं अभी हमारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और कैंपस में हमारे पास बीएस मैथमेटिक्स ऑफर हो रहा है, तो
हर कैंपस में ही ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, कम से कम 40 स्टूडेंट तो होंगे, ठीक है। When you have data on the average salary and the average number of children in a society, each of these different data points is an example of statistic. तो ये भी एवरेज निकालना, जैसे ये पहले भी हम फाइन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस इन अ कंट्री, हाउ मैनी अफेक्टेड और रिकवर्ड। ये आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस के स्टेटिस्टिक्स आ रहे होते हैं, और डिफरेंट ग्राफिकल व्यूज़ भी इसमें, ग्राफिकल जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन भी की होती है कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, स्टूडेंट जो 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 मरीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं या रिकवर कितने हो रहे हैं, इफेक्ट कितने हो रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको आजकल आप देख रहे होंगे टीवी पे। द ट्रेंड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज इन अ कंट्री। तो ये भी आपको मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डिफरेंट ग्राफिकल मेथड यूज़ हो रहे हैं इसको कोरोना वायरस के लिए। नेक्स्ट वी कम टू द टर्मिनोलॉजीज that will be important, that are important for learning. First is variable. Variable is used to describe any number denoted by x, y or z. कोई भी नंबर है, जैसे कि हम कहते हैं कि क्लास, जैसे पिछले एग्जांपल हमने दिए थे कि वो एवरेज हाइट ऑफ मैन, तो मैन की जो डिफरेंट हाइट्स आएंगी, किसी की 6 इंचेस आ जाएगी, किसी की 5.5 आ जाएगी, किसी की कुछ आएगी, ये सारे जो है ना ये जो है ना ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। A variable is any characteristic number or quantity that can be measured or counted. यानी जो चीज़ आप काउंट कर रहे हैं उसी को हम एक नाम दे देंगे, that is known as a variable, वेरिएबल x, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो कॉइन के जो आउटकम्स हैं वो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। या हम डाई को रोल करते हैं तो उसकी आउटकम क्या आती हैं, 1 से 6 तक आती हैं। तो ये इसको एक्स को शो करते हैं, एक्स डिनोट द आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड। तो इसकी क्या आउटकम्स होंगी, एक्स की वैल्यूज पे क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6। अ वेरिएबल मे आल्सो बी कॉल्ड अ डाटा आइटम, यानी कि डाटा की आइटम्स है उसी को हम कह रहे हैं ना कि ये वेरिएबल को शो कर रहा है। इस तरह से एज है, एज जो है ना वो एक क्लास में हम देखते हैं कि एज ऑफ मेल स्टूडेंट्स, उनकी क्या हाइट है, उनकी क्या एज है, हाइट भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सेक्स मेल एंड फीमेल आ गया, एंड बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी कि एक बिजनेस फर्म है कोई या कंपनी है, वहाँ पे कितनी इनकम और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, उनकी भी आपके पास एक डाटा आ जाएगा, यानी एक को एक्स कह लें दूसरे को वाई कह लें, ठीक है। बर्थ रेट ऑफ कंट्री है, ठीक है, बर्थ रेट ऑफ कंट्री यानी कि पाकिस्तान का ये बर्थ रेट है, किसी और कंट्री का कुछ और होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इनको कंपेयर करके कि किस कंट्री का ज़्यादा है, किस कंट्री का कम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लास ग्रेड्स हैं जैसे, ठीक है, थ्री जीपीए वगैरह जो आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई कलर एंड व्हीकल टाइप आर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल के आगे टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल आर मेजर्ड ऑन अ न्यूमेरिक और क्वांटिटेटिव स्केल। तो जो चीज़ मेजर कर सकते हैं दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। ऑर्डिनल 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 इंटरवल, ऑर्डिनल जो है वो नंबर्स होते हैं, यानी काउंटिंग 1 2 3, और इंटरवल, इंटरवल में मेजर करना है, यानी कि उसकी कोई भी वैल्यू किसी इंटरवल के बिटवीन हम कहेंगे इसकी वैल्यू जो है ना वो किसी एक इंटरवल में आ रही है, जैसे 1 और 2 के बिटवीन कोई वैल्यू है। जैसे हम कहते हैं एवरेज हाइट, जो हाइट ऑफ पर्सन है वो 5 और 6 इंचज़ के बिटवीन आ रही है, तो ये एक इंटरवल को शो करता है। इंटरवल बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे जब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा पढ़ेंगे, उसमें ये मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड रेशियो स्केल्स आर आल्सो क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा इन्वॉल्व्स मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट जहाँ होगी वो क्वांटिटेटिव डाटा ही होगा, क्वांटिटेटिव में मेजरमेंट ही इन्वॉल्व होती है, जो किसी मेजर करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव डाटा होगा। कंट्रीज, पॉपुलेशन, अ पर्सन, शू साइज और अ कार स्पीड आर ऑल क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स दैट आर नॉट क्वांटिटेटिव आर नॉन एज क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब जो जिसमें मेजरमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें सिर्फ हम उसकी कलर बता रहे हैं किसी चीज़ का, या 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 सेक्स वगैरह बता रहे हैं कि ये इसमें मेल और फीमेल हैं, तो वो वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल। और categorical variable are variables that are not numerical. It describes data that fit into categories. तो क्वालिटेटिव वेरिएबल में हम कैटेगरीज बन गए ना, जैसे कि हम कहते हैं कि ये रेड कलर में रेड कलर ये है, ठीक है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्राउन कलर है, ठीक है। यानी यानी कि हम कहते हैं कि मेल में आई कलर कौन कौन से हैं, जैसे कि कलर ब्लू कलर वाले कितने मैन हैं, ग्रीन कलर वाले कितने हैं, ब्राउन कलर वाले कितने हैं। तो ये देखें ना, कैटेगरीज बनी, ग्रुप बन गया है, ठीक है। तो जिस तरह ग्रुपिंग होगी तो ये फिर इसलिए इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप में ये आपको शो करेगा। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स दैट टेक कैटेगरी और लेबल वैल्यूज एंड प्लेस एन इंडिविजुअल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वही बात जो ग्रुप्स जो है ना वो इसमें बन जाएंगे, ठीक है। नेम्स और लेबल्स द कलर ऑफ अ बॉल, रेड ग्रीन, और ब्रीड ऑफ अ डॉग, डॉग की जो नस्ल है कुल, ये इसके टाइप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। वुड विद एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। नेक्स्ट type is discrete and continuous data. Discrete values are quantitative data that are countable, which have gaps. It is based on counts, यानी जिसको आप काउंट कर सकते हैं, values ये 1 2 3, ठीक है। It is typically things counted in whole numbers. For example, number of coronavirus patients treated in a hospital each day, ठीक है। या मार्क्स और स्टूडेंट्स हैं, इनको आप काउंट कर सकते हैं, ये फर्स्ट मार्क है, ये सेकंड स्टूडेंट के मार्क है, ये थर्ड के हैं या फोर्थ के हैं, ठीक है। तो जिन वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं वो क्या होंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगे, और ये इन्फिनिट भी हो सकती है। मैथमेटिकली इसको कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। काउंटेबल का मतलब भी यही होता है कि जो फाइनाइट भी हो सकता है, इन्फिनिट वैल्यूज भी हो सकती हैं। इट कैन बी कैटेगोरिकली लाइक रेड और ब्लैक, रेड और ब्लू, और मेल और फीमेल, और गुड और बैड, यानी कि कैटेगरीज बन जाएंगे ना इसमें। रेड में कितने लोग हैं, ब्लू आइज वाले कितने हैं, रेड आइज वाले कितने हैं, ठीक है। तो ये तो गुड पीपल कितने हैं, बैड पीपल कितने हैं, ठीक है, ये भी काउंटिंग में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दिस नोन एज। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा सेट इज अ क्वांटिटेटिव डाटा। डिस्क्रीट जो है ना वो भी क्वांटिटेटिव डाटा है, और जो कंटिन्यूस डाटा है ये भी क्वांटिटेटिव डाटा है। दैट कैन हैव वैल्यूज दैट आर रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शंस, यानी वो वाली वैल्यू जो पॉइंट में कोई भी वैल्यू आप कंसिडर करें वो हो सकती है। जैसे कि वेट मेजर करते हैं, हाइट करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, तो वेट जो है ना वो इट कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो तो ज़्यादातर होल नंबर में होते हैं या कोई एक पॉइंट में होता है, 62.5 ये एक वैल्यू हो गई, ज़्यादा नहीं पॉइंट में होते हैं, ठीक है। तो लेकिन वेट जो है ना ये तो पॉइंट में कुछ भी हो सकता है, हाइट भी कुछ भी हो सकती है, टेम्परेचर भी डेसिमल में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यूज़ किसी भी इंटरवल में लाई कर सकती है, ठीक है। तो इस तो और इंटरवल जो है वो अनकाउंटेबल होता है। आर एग्जांपल्स ऑफ मेजरमेंट एंड वुड मेक अप अ कंटिन्यूअस डाटा। इट कैन टेक एनी वैल्यू ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज, ठीक है। यानी कि किसी भी रेंज में ये वैल्यूज, जिसे हम कहते हैं वेट जो है ना वो पर्सन्स का 70 और 80 के बिटवीन है, ठीक है। तो 70-80 के बिटवीन डेसिमल में कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसलिए जो कंटिन्यूअस डाटा है उसको हम अनकाउंटेबल कहेंगे। Between any two continuous data values, there may be an infinite number of buzzer values. ठीक है। Continuous data values are essentially numeric. Numeric यानी कोई भी वैल्यू है ले, ठीक है। आगे लास्ट में मैं जो है वो आपको बताना चाहूँगा, पैरामीटर एंड सैंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर। अब जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जैसे कि मीन, मॉड, मीडियन वगैरह हम अगर पॉपुलेशन का निकालते हैं यानी कि ओरिजिनल डाटा का निकालते हैं तो वो क्या होगा, पैरामीटर कहते हैं। And the numerical quantities describing a sample is called a statistic. और जो सैंपल की हम मीन, मॉड, मीडियन वगैरह निकालेंगे उनको स्टैटिस्टिक कहते हैं। पॉपुलेशन इज द होल ग्रुप ऑफ डाटा
सेट और पॉपुलेशन साइज डिनोटेड बाय कैपिटल एन जहाँ भी लिखा हो थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द कोर्स किसी भी बुक में आप देख लें तो वो जो सैंपल साइज है वो पॉपुलेशन साइज है वो कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। सैंपल इज अ सेट ऑफ डेटा टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन to represent the population. It is a part of population samples. Sample size is denoted by small n. ठीक है, तो पॉपुलेशन से जो करस्पॉन्डिंग है वो दूसरी चीज़ जो है सैंपल है। सैंपल जो है ना वो पार्ट ऑफ डाटा है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, और इसकी जो नोटेशन है वो एन है। ठीक है, यानी अगर कैप जो पॉपुलेशन साइज है अगर 1 लाख है, सैंपल साइज 1000 हो सकता है। ठीक है, 1000 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। Mathematically, we can say that population is the universal set and sample is the subset of population. Mathematically, you can describe. And the next is uh, पैरामीटर। ये नोटेशन जो मैंने लिख दी है यहाँ पे, पैरामीटर और ये स्टैटिस्टिक है। पैरामीटर जहाँ आएगा वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा, यानी ओरिजिनल साइज डेटा। फॉर एग्जांपल आप देखें इसमें जो म्यू है ये पॉपुलेशन मीन को शो करता है, और जो सैंपल मीन को हम एक्स बार ये से शो करेंगे। ठीक है, इस तरह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना सिग्मा, दिस इज मैथमेटिकल सिंबल सिग्मा, एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, इसकी नोटेशन है एस कैपिटल और एस स्मॉल लेटर एस। एंड सिमिलरली वेरिएंस एंड द पॉपुलेशन मूवमेंट्स हैं।